یہ خود آئے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو بلوچستان کے بازرور کرے ہمیشہ بلوچستان سرزمین بلوچستان کے اس ڈسٹرکٹ میں جو بلوچ قوم کے تاریخی ضلع، تاریخی شہر جعفر آباد میں موجود بلوچستان کے جعفر آباد کے قبائلی عمائدین پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی، صوبائی، ضلعی، ڈویژن، تحصیل عہدیداران اور یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے وکلاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب کل ہم بلوچستان کے بلوچ بیلٹ سے ہم نے انٹری کی اور خان صاحب کے حکم پر اسٹریٹ موومنٹ کا ہم نے آغاز کیا، تو سی بی اور سی بی سے ڈیرہ مراد جمالی اور پھر جعفر آباد کے ساتھیوں نے جو استقبال کی اور عمران خان کے حکم پر لبیک کہا، اور ایک وہ جو میرے ساتھیوں نے مجھے یہ کہا کہ بلوچستان میں لوگ صرف کہتے ہیں کہ پشتون بیلٹ میں تحریک انصاف ہے، بلوچ بیلٹ میں نہیں، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں اپنے پارٹی میں مرکزی قیادت کے ساتھ ہمیشہ اس بات پر لڑتا آ رہا ہوں کہ بلوچستان کے چاہے پختون ہو یا بلوچ ہو یا یہاں پر جو قومیں رہتے ہیں وہ سب عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو فارم 47 کی حکومت اور وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں سے چند کلومیٹر پر ان کے اپنے قبائلی گھر ہے یا آبائی اضلاع ڈیرہ بگٹی ہے، میں ان کو وہ ہمیشہ عمران خان یا ان کے ورکرز پر سیاسی تیر چلاتے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اپنے آبائی گاؤں میں ایسے کنونشن جو ہم کنونشن کرنا چاہتے وہ جلسے میں تبدیل ہوا، ایسے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کر کے دکھائے، میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ تو کیا، آپ کی پوری پارٹی فارم 47 سے نہیں کر پائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، عمران خان آج جیل میں، وہ صرف اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ جیل میں کہ پاکستان میں رول آف لا، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ جب تک پاکستان میں تمام ادارے اپنے حدود میں کام نہیں کریں گے، پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے قانون نہیں ہوگا، یہ پاکستان کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ جس کا خواب علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا، یہ خواب اس وقت تک نہیں جو انہوں نے دیکھا، یہ پاکستان اس وقت تک نہیں بن سکتا جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے۔ کیونکہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو بلوچستان کے لوگ جتنے محب وطن ہیں، جو اسلام پرست ہیں، جو اللہ کے حضور میں صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس ایک کلمے کے بدولت ہم سارے پختون، پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی تمام مسلمان ایک ہوئے اور ہم نے ہندوستان سے آزادی لی، صرف ایک کلمے پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں کو اب ایک الگ قلعہ بنانا ہوگا، ایک الگ قوم، اس قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور اس قوم کو اکٹھے کرتے ہوئے ہم نے پاکستان بنایا، اور پاکستان ہمارے بزرگوں کے قربانیوں کے بدولت بنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان کو پھر بیچ رہے ہیں، پاکستان کے منرلز، معدنیات پر قبضہ کیا گیا ہے، پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان کے کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں جہانگیر کل مجھے بتا رہے تھے کہ کسان کو جو انہوں نے رلایا، کسان کے گندم جب تیار ہو جاتا ہے فصل، وہ کوڑی داموں پہ یہ لوگ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ فروخت کر سکیں۔ کسان کے یہ شالی وغیرہ جو آتے ہیں، گنا وغیرہ جو آتے ہیں، یہ صرف وہ چند باثر لوگ ان پہ قابض ہیں جنہوں نے اپنی فیکٹریاں لگائی ہیں، کسانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جہانگیر، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں،
इन बेशर्मों के हाथ में नहीं है। कब तक ये जुल्म और जबर करते रहेंगे? हम बार बार कहते हैं कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं, और ये जुल्म का निजाम उस वक्त खत्म होगा जब मैं और आपने निकलना है, जब हमने निकलना होगा हमें। और स्ट्रीट मूवमेंट का जो इमरान खान ने कहा कि गली गली में हमने कहना है, इन चोर मदारियों के खिलाफ निकलना है और इमरान खान को रिहा करके वाकई में ये उम्मत मुस्लिमा का जो कहते हैं कि पाकिस्तान का एक ही मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। किला इस तरह नहीं बनता जब तक आप इसको मदीने की रियासत ना बनाए। अजीज साथियों, इमरान खान का लड़ाई इक़्तिदार के लिए नहीं है, कुर्सी के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई ये पीपल्स पार्टी और नून के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई जो है उन ताकतवर कोतों के साथ है जो 78 साल से इस मुल्क पर जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, गरीब को गरीब तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका और फलस्तीन के पॉलिसियों पे चल रहे हैं। और अब एक और चीज, बलूचिस्तान के मादनियात पे कब्जा करने के बाद बलूचिस्तान के लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। और इस कारोबार छीनने में, इस गुनाह में सकावल के किरदार हमारे वजीर आला साहब जो अपने आप को बलोच कहते हैं वो, और हमारे गवर्नर साहब जो अपने आप को पश्तून कहते हैं, ये दोनों इसमें बराबर के शरीक है। 3 से 4 बॉर्डर्स हैं। कप्तान बॉर्डर है वो बंद है, माशकेल हमारे बंद है, नोशकी बॉर्डर इन्होंने बंद करवाया, चमन बॉर्डर इन्होंने बंद करवाया। बलूचिस्तान के लोगों से रोजगार ये छीन रहे, बलूचिस्तान के लोगों को ये अब खुद मुजाहमत की तरफ ला रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये मुजाहमत आपको बांग्लादेश की तरह ना पड़े, ये बांग्लादेश की तरह आपको पड़ जाएगा। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। लोग कहते हैं कि आपने काम किया है। मैं जिस सरजमीन, जिस डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ, नसीराबाद के जो जरमरा जमाली का जो बाईपास था, ये इमरान खान के दौर में मंजूर करवाया था। हमारे वजीर आला साहब उस वक्त जाम कमाल साहब थे। तो जैसे हमारे हुकूमत इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने खत्म की, तो वो काम इन्होंने रोक दिया। अब वो उस बाईपास पे इमरान खान ने नहीं आना था, वहां पर इमरान खान ने नहीं रहना था, बलूचिस्तान के और डेरमराज जमाली के अवाम ने रहना था। क्वेटा टू कराची रोड ये इमरान खान के दौर में हुआ, क्वेटा टू चमन रोड ये इमरान खान के दौर में हुआ, क्वेटा टू जोब रोड इमरान खान के दौर में हुआ। जब तक आपके पास ये सारे काम इन्होंने रोक दिए। अगर इमरान खान इस वक्त होता तो ये तो कब का कंप्लीट हो जाता। मैंने एक दिन खान साहब को बलूचिस्तान के सीएम हाउस में कहा कि खान साहब, बलूचिस्तान में जितने धमाके होते हमारे बलोच उसमें इतने नहीं शहीद होते जितने क्वेटा टू कराची रोड हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। क्वेटा टू ये बोलान और नसीराबाद से जाते हुए जखमाबाद रोड हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, जितने हमारे लोग इस कार एक्सीडेंट में शहीद हुए। और इस जालिम हुकूमत ने वो सारे तरक्याती काम रोक दिए। और यहाँ तक कि क्वेटा में बल्दियाती इलेक्शन 2022 में होना था, अब इन्होंने हाई कोर्ट के जरिए से हमने उनका मंजूरी दी थी कि जी ये करवाना चाहिए। 1 महीने से हम मतवतर काम कर रहे थे और ये फॉर्म 47 के मिनिस्टर जो कहते थे जी हम जीत जाएंगे, जी मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर हमारा होगा। आप लोगों ने देखा कि परसों उन्होंने वो जो आईनी बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट में, ये कोई आईनी अदालत नहीं है, कोई आईनी अदालत नहीं, ये इनका पैदाशुदा आईनी अदालत है जो यार लोगों के कहने पे जो फरमान जारी होगा वो कहेंगे। आपने देखा कि वो बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग गए, वो इस वजह से कि हर इलाके में इमरान खान के लोग मौजूद है, इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है, तो ये उनके अरकात और उनके करतूत है। तो मैं आप तमाम साथियों को कहूंगा, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार है, मुजाहिमत के लिए तैयार है, और ये मुजाहिमत पाकिस्तान के कोई भी सूबा करे या ना करे, मैंने, हमारी टीम ने और अली मदिल शेख जो हमारे सिंध के प्रेसिडेंट है, हमने वादा किया कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ एक इंकलाब का, एक मुजाहिमत का तहरीक चलाना है और इमरान खान के पास अडियाला जेल की तरफ रवाना होंगे। चाहे पंजाब हमारे साथ दे या ना दे,
पख्तनख्वा साथ दे या ना दे, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने निकलना है। और मुझे खुशी है कि सिंध के बॉर्डर पे आज ये जो जलसा हो रहा है, कन्वेंशन में जो था वो जलसे में तब्दील हुआ। मेरे सिंध के जो भाई जिस तरह के जिद मेहनत और जज्बे के साथ लगे हुए हैं, उसके बॉर्डर पे जो हमेशा धमाके के जद में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और शेरपसन की दिगी यहाँ पर दिन ब दिन यहाँ पर जो चोर डाकू राज इस अजला में पैदा किया जाता है, वो नहीं रहे, पैदा किया जा रहा है। उस डिस्ट्रिक्ट में आज आपने साबित कर दिया कि हजारों के तादाद में लोग निकले। आप तैयार हैं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हम एक तहरीक ये आगे बढ़ाएंगे और मुजाहिमत की तहरीक शुरू करेंगे जो बांग्लादेश में शुरू हुआ, क्योंकि ये मजबूर करे, हमें कोई शौक नहीं है, ये हमें मजबूर करे। और फिर इसके लिए आप बताएं, आप तैयार हो या नहीं? जान भी चली जाए, इमरान खान के तहरीक के लिए आप तैयार हो या नहीं? हाथ उठाए, ये जुम्मे का दिन है, हाथ उठाए, इमरान खान की तहरीक के लिए तैयार हो गए या नहीं? मैं सत्य बलुचिस्तान के प्रेसिडेंट जब आवाज दूंगा कि निकलो बलुचिस्तान के लोगों, अब हमने इस्लामाबाद में एक बार फिर चढ़ाई करनी है, चाहे हुकूमत कहे या ना कहे, चाहे पार्टी कहे या ना कहे। आप तैयार होंगे या नहीं? हाथ उठा के बता दें, होंगे या नहीं? और लास्ट में मैं जहांगीर हिंद साहब आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहसत सेक्रेटरी जनरल दिन रात हमारी टीम के साथ, मेरे साथ, वाकई में रियल में एक भाई के साथ रहे। आपके साथ जो एज ए सेक्रेटरी जनरल मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि मेरे भाई मेरे साथ हैं। जब वो कहते हैं कि बलोच वफादार है, बलोच के खून में वफादारी, और वो मैं आपने हमेशा साबित की है। बलूचिस्तान के क्वेटा पश्तून अजला में यहाँ पर दर्जनों एफआईआर हुए, उसके बावजूद आप डटे रहे, डरे नहीं, और आप मुझसे भी ज्यादा काम करे। पश्तून बेल्ट को भी संभाले, बलोच बेल्ट को भी संभाले, और इसके साथ साथ आदम दिन साहब आपका और आपकी पूरी टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, जाफराबाद, उस्ताद मोहम्मद, सोबतपुर, आप केची, बोलान और तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इज्जत आप लोगों ने हमें दी, इमरान खान को दी। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। आज का ये जलसा, इसका मकसद सिर्फ एक ही है। मरकजी लीडरशिप ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, और बलूचिस्तान में सबसे पहले हमने इसका आगाज जाफराबाद से कर लिया है। इमरान खान की इस रिहाई और स्ट्रीट मूवमेंट में आपको जाफराबाद में खुशामदीद कहता हूँ। खान साहब ने इस हेजेमनी को, इस तसल्लुत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियाद रखा।